Good afternoon, students. Today, let us carry on with statistics, chapter number 14. Okay. First, I'm going to do a few more examples before starting the exercise. Alright, I was talking to you about central tendencies, mean, median, and mode. And we started with the first central tendency, mean. Mean means a simple average. There are different ways of finding the mean. Okay, अलग-अलग तरीके से खास करके हम तीन तरीके के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. Alright, supposing see, look at this example here. I am going to find by all three methods. Okay, direct method, assumed mean method, and also by step deviation method. Let's see if we get the same answer. Okay, see, class intervals are given: 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. And then frequency is given. Okay, 2, 3, 7, 6, 6, 6. 6 3 is 18 into 20 and 30. So here n is equal to 30. The total of frequency n is equal to 30. n की जगह पे कभी कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, sigma f is equal to n is equal to 30. Okay, it is the same thing. Remember, whether you call it sigma f or n, it is the same thing. Alright, it's not a different thing. Now, after that, I find x. What is x? Midpoints. Okay, उसको midpoints भी बोलते हैं या तो class marks भी बोलते हैं. Class mark भी बोलो या तो midpoint बोलो, it is the same thing. Okay, midpoint, or you can call it midpoint or class mark. Okay, class point or class mark, it is the same thing. There is no difference, and we call it x. All right, how do you find 10 plus 25? 10 plus 25 divided by 2. Okay, 10 plus 25 divided by 2 is 35 divided by 2. 35 divided by 2 is 17.5. Okay, so here 17.5 आएगा. This is your midpoints or class marks. This is 17.5. Okay, now you see the class length is equal. ये जो class length है वो 15-15 का है, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55. So अभी इसमें 15 ऐड करते जाओ. Okay, 17 and 15, 32. Okay, that is 32.5. अब फिर से 15 ऐड करो तो 47.5. अब फिर से 15 ऐड करो 62.5. Okay, 56 is then 77.5. Then 92.5. Okay, ये क्लास मार्क्स आ गया. ये क्लास मार्क्स आ गया. उसके बाद हम f इंटू एक्स करेंगे. ओके, एफ एक्स, ये डायरेक्ट मेथड है. ओके, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड. वी आर डूइंग दिस बाय डायरेक्ट मेथड. f इंटू एक्स. अब f इंटू एक्स करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करने का है. ओके, सो लेट अस कीप डूइंग इट नाउ. सो just to make it faster, I am using the calculator. 17.5 into this will be 35. Okay, then 32.5 into 3. Okay, 32.5 multiplied by 3 is equal to 97.5. 47.5 multiplied by 7, that is equal to 332.5. 332.5. 62.5 multiplied by 6 is equal to 372. Then 77.5 multiplied by 6 is equal to 465. And then finally 92.5 multiplied by 6 is equal to 555. 555. Okay, now this is sigma fx. Okay, इसका ऐड करेंगे. So 555 plus 465 plus 465 plus 372 plus 332.5 plus 97.5 and plus 35.
1857. Okay, now we use the formula for direct method. X bar is sigma fx upon sigma f. अब sigma f की जगह पे n लिखो, it is the same thing. Okay, so you get 1857 divided by 30, and that is equal to, when you divide it by 30, you get 61.9. 61.9. All right, now let us see. I'm going to do this by another method. Okay, let me see if I do this by, this was by direct method. Now let me do this by assumed mean method. Okay, this is now by assumed mean method. ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, assumed mean मेथड से करेंगे. उसके लिए भी हमको क्लास चाहिए पहले, और उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो क्लास तो दे दिया है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, then 55 to 70, and then 70 to 85, and then 85 to 100. ओके, और फिर उसके बाद हम उसका टोटल करेंगे. और फ्रीक्वेंसी दिया है हमको, एफ दे दिया है फ्रीक्वेंसी. ना व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 237,237,666, और ये एन की वैल्यू है 30 टोटल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट बाय अस्यूम्ड मीन मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड वैल्यूज तो निकालना ही पड़ता है. मिड पॉइंट्स या तो मिड वैल्यूज या तो क्लास मार्क, इट इज द सेम थिंग. ओके, एक्स निकालेंगे, मिड वैल्यूज तो सेम होगा. 17.5, ओके, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5. ये सब क्लास मार्क्स और मिड वैल्यूज और मिड पॉइंट्स, दैट इट इज द सेम थिंग. ओके, 10 + 25 डिवाइड बाई 2. ऑलराइट, नाउ ये दोनों में इसमें एक और कॉलम बन गया था, एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ ऑफ एक्स निकाला था. ओके, बट हियर अज्यूम मीन मेथड में हम अज्यूम करेंगे. सपोज इसको मैं अज्यूम करता हूँ, इसको मैं ए की वैल्यू लेता हूँ. ये अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है? देखो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. ओके, वेयर एन इज दिस. सिग्मा एफ एक्स लिखो, सिग्मा एफ लिखो, या तो एन लिखो, एक ही बात है. सिग्मा एफ आई डी आई लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एफ डी लिखो, सिर्फ एफ आई डी आई लिखने की जरूरत नहीं है. सो नाउ ये एफ तो है, अब हमको डेविएशन निकालना पड़ेगा. डेविएशन डी, एक्स माइनस ए का कॉलम, एक्स माइनस ए का कॉलम निकालेंगे हम. ओके, और उसके बाद एफ इंटू डी का कॉलम निकालेंगे, एफ इंटू डी का कॉलम निकालेंगे, और ये सिग्मा एफ डी हो जाएगा. ओके, हमने ए की वैल्यू कितनी ली है? 47.5 लिया है. वी हैव टेकन 47.5, और एन की वैल्यू तो 30 है. ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड सिग्मा एफ डी. तो पहले डी निकालेंगे. तो 47.5 जहाँ पे हमने लिया है वो तो यहाँ पे तो जीरो जाएगा. 47.5 माइनस 47.5, जो जीरो के ऊपर आएगा वो नेगेटिव आएगा, जीरो के नीचे आएगा वो पॉजिटिव आएगा. 17.5 माइनस 47.5, डिफरेंस इज 30, सो ये माइनस 30. इसी तरह से 32.5 माइनस 47.5, डिफरेंस इज 15, ये 15 आएगा. ओके, इसी तरह से डिफरेंस ये 15 का है, ये डिफरेंस 30 का है. ओके, और ये 45 का डिफरेंस है. ऑलराइट, 47.5 एंड माइनस 92.5 माइनस 47.5, 92.5 minus 47.5, 45. Alright, now f into d, f into d, 32s are minus 60. Remember the minus sign is also there, so you have to be careful with the minus sign. 15 into f, don't multiply with x. Okay, 15 3s are, f into d है minus 45 है. Alright, 0 into 7, 0 होगा. 15 into 6, 15 6 are 90. Alright, 6 into 3, 180. 6 into 30, 6 into 45. Okay, so 45 to 130, 132, 270. So this will be 270. All right. So now you add this up. See, देखो ये माइनस है, तो this will be minus 105. Okay, ये टोटल है, इसका टोटल.
प्लस का टोटल और माइनस का टोटल अलग करो, बाजू में पेंसिल से कर सकते हो। ओके, ये होगा कितना है, ये 0, ओके 0, 9, 7 and 8 15 and 9 24, 2 and 2 4 and 1 5, 540। अब इधर 540 माइनस 105 करो। ओके, इसको माइनस करो। अगर 100 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 440, तो ये 435 होगा। ऑलराइट, 435, 400, दिस विल बी 400, 540। बट माइनस साइन बड़ी है कि प्लस साइन बड़ी है, प्लस साइन बड़ी है, इसलिए प्लस 435, सो दिस विल बी 435। ये सब रफ में कर सकते हो। ओके, लेकिन कैसे किया वो मैंने बताया तुम्हें। सो ये 435 अपॉन 30, सो 47.5 प्लस 435 डिवाइड बाई 435 डिवाइड बाई 30, एंड दैट इज इक्वल टू 14.5। अब इसको ऐड करो। ओके, 9 and 5 14, ओके, and 7 and 8 and 4 12, 4 and 1 5 and 1 6, 62.4। ओके, यू कैन सी द डिफरेंस इज 0.5 का डिफरेंस आता है ये मेथड और इस मेथड में, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 0.5। दिस इज ऑलमोस्ट 62, दिस इज 62.4, सो 0.5 का डिफरेंस आता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम वन बाय, ये शॉर्टकट मेथड था, डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड। ओके, दिस मेथड इज अ ज़ूम इन मेथड, एंड नाउ वी विल डू वन मोर, एंड दिस वन वी विल डू बाय, okay, now we'll do this one by step deviation method। okay, step deviation method, step deviation method से। alright, now let us see the same thing। okay, step deviation method से class, okay, and frequency। class था 10 to 25, okay, then 25 to 40, then 40 to 55, then 55 to 70, then 70 to 85, and finally 85 to 100। alright, frequency, if I remember correctly, 2 3 7 6 6 और 6, और ये था 30, ये टोटल। नाउ वी आर यूजिंग द थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये दिस मेथड इज गोइंग टू बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखो। देखो इसमें 1-2 स्टेप बढ़ गया था, इसमें देखो अभी क्या करते हैं। अब पहले मिड वैल्यूज निकालेंगे, जो मिड वैल्यूज निकालेंगे वो तो वैसे ही है, 17.5, ओके, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, and finally 92.5। alright, you can see that इसमें वही मिड वैल्यूज है, 10 + 25 डिवाइड बाई 2। अब डायरेक्ट मेथड से करना है तो f और x को मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा। और अगर अज्यूम इन से करना है तो एक डेविएशन का d का एक और कॉलम बढ़ना पड़ता है और फिर fd। लेकिन इधर भी हम पहले क्या करेंगे, इसके बाद हम d तो निकालेंगे। ओके, बट d निकालने से बेटर है कि हम u निकालेंगे। u इज d माइनस, एक्चुअली ये x माइनस a, ओके, x माइनस a अपॉन h। ओके, u इज x माइनस a अपॉन h, और देन इसके बाद एफ यू का कॉलम निकालेंगे। ओके, एंड देन सिग्मा यू एफ या एफ यू लिखो, वो एक ही बात है। ओके, सो एक्स बार विल बी इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू एफ और एफ यू इज द सेम थिंग अपॉन एन, ओके, इन टू एच। या नाउ सी दिस कॉलम इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमने ए ले लिया, सपोज ये लिया, ए के सामने ये 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, देखो x की वैल्यू 47.5 माइनस 47.5, ये 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट वन देखो कैसे करता है, 17.5 माइनस ये हमने a क्या लिया है 47.5 अपॉन h की वैल्यू, h मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। व्हाट इज h? h इज लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल।
लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल मतलब ये 10 to 25 ये कितने का है, ये h की वैल्यू 15 है, 15 का क्लास इंटरवल का लेंथ है। सो इधर हम 15 लेंगे। ओके, सो ये कितना आता है 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 आता है अपॉन 15। सो ये -2 आएगा। सो ये -2 आ जाएगा। देखो इसमें ये जो मेथड थी इधर देखो -30 था, लेकिन हमने x माइनस a किया था और नीचे h नहीं लिया था, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है अज्यूमिंग मेथड में और इस मेथड में। ओके, देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। नाउ यू सी वंस यू गेट दिस, तो ये आएगा ना 32, देखो 32.5 है। सो सपोज आई वांट टू फाइंड 32.5 माइनस 47.5 अपॉन h की वैल्यू 15 है। ओके, तो ये -15 होगा और ये +15, सो ये -1, सो ये -1 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1, 2 और ये 3 आ जाएगा, प्लस आएगा नीचे, ऊपर माइनस आएगा। ओके, नाउ f इंटू यू, सो 2 इंटू -2 4, 3 इंटू 1 -3, 0 इंटू 7, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3। ओके, सो दिस नंबर विल बी इक्वल टू -7 और ये नंबर होगा 36 प्लस 36। ओके, डिफरेंस निकालो तो 29 आता है। सो दिस इज इक्वल टू 29। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है कि देखो ये नंबर्स बहुत छोटे हो गए हैं। ओके, इस अज्यूमिंग मेथड में देखो ये नंबर्स कितने बड़े थे नंबर्स। ओके, क्योंकि हमने h से डिवाइड नहीं किया था, हमने u नहीं निकाला था, इसमें d निकाला था और fd निकाला है हमने। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में मेथड बिकम्स फास्टर बिकॉज द नंबर्स बिकम स्मॉल। व्हाई द नंबर्स बिकम स्मॉल? बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, सो नाउ दिस विल बिकम a हमने 47.5 लिया था, सिग्मा FOI was 29। ओके, एंड n की वैल्यू 30 है और मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू कितनी है 15। ओके, सो 47.5 प्लस 15 2 जा 30, 29 को 2 से डिवाइड करो तो 14.5। ओके, सो दिस बिकम्स 48 प्लस 12, दिस बिकम्स 62। You can see, you get exactly 62 here and 62.4. Small difference only small difference between all the three methods. So what I'm saying, you see, you can do it by any method, but generally you should prefer this method. When should you prefer this method? Because the number, why you should prefer? You should prefer these numbers because the numbers become smaller. Okay, now I'm going to actually show you another one, okay, by step deviation method. So this method I want all of you to become master in this method, okay, because it is important. Okay, supposing, let us just suppose that I have got another question where the class intervals are slightly bigger. Okay, say 15 to 25, 25 to 35. Okay, class intervals are given here. Okay, class intervals 15 to 25, 15 to 25, then 25 to 35, then 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, okay, 65 to 75, and then 75 to 85. And then frequency is given. Frequency is 6, 11, 7, 4, 4, 2, and 1. Alright, now I've got this question out here. Okay, I want to find it by the step deviation method. Remember, the step deviation method is the perfect method. You should try this method only. Okay, and which is the step deviation method? Actually, it is a shortcut method. Later on you will come across this word in higher classes के इसको actually shortcut method बोलते हैं. Shortcut method इसलिए बोलते हैं कि ये numbers छोटे हो जाते हैं. Alright, now here n की value देखो 6, okay, 11 and 7 18, 18 and 6 24, 24 and 8 32, 32 and 3 35. So n की value 35 है. Okay, n की value 35. Now I'm going to find mid values x. Okay, उसको मैं mid value बोलता हूँ, mid point बोलता हूँ, class mark भी बोल सकते हैं, एक ही बात है. Okay,
x की वैल्यू। अगर किसी को याद नहीं रखता है तो इधर मैं मिड पॉइंट लिखना, मिड वैल्यूज लिख देता हूँ, सो यू नो व्हाट x इज। ओके, मिड वैल्यूज है 15 + 25, सो 30 40, तो इसका मिड वैल्यू आएगा 20। ओके, अब देखो 15 25 25 35 और 35 10 का डिफरेंस है। ओके, 10 का डिफरेंस है तो भी इधर भी 10 का डिफरेंस हो जाएगा। ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 होगा, 70 होगा और ये 80 होगा। अगर लास्ट को यकीन नहीं है तो इसको कर लो, 70 एंड 150, 150 एंड 160, 160 डिवाइड बाई 2 इज 80। ओके, जब क्लास इंटरवल्स रेगुलर हो, सी ये इसको रेगुलर क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, और इक्वल क्लास इंटरवल्स है। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। इधर h की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 10 है, सब में 10 का है। सो देयरफॉर यू कैन जस्ट ऐड आउट हियर इमीडिएटली, फटाफट हो जाता है, बहुत समय कम लगता है। अब मिड वैल्यूज होगी। अब दो प्रकार से कर सकते हो। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले डी की कॉलम निकालते हैं। डी का कॉलम क्या, पहले मैं मान लो कि मैं इसको ए लेता हूँ, ये मैंने ए ले लिया, 50 को अज्यूम मीन। व्हाट इज ए? ए इज अज्यूम्ड मीन। ओके, अज्यूम मीन हमने क्या लिया है, 50 लिया है। एच की वैल्यू ये क्या है, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ, ये क्लास लेंथ कितना है इस क्वेश्चन में 10 है। ओके, कुछ लोग डी पहले निकालते हैं, डी का कॉलम, वो भी निकाल सकते हो। डी का कॉलम क्या होगा, x माइनस ए। ओके, तो x माइनस ए 20 माइनस 50। ओके, 20 माइनस 50 तो माइनस 30 आएगा। अब माइनस 30 को 10 से डिवाइड करो तो माइनस 10 3 माइनस 3 आएगा। ओके, सो पहले क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो इधर d निकाल देते हैं, x माइनस ए। ओके, उसके बाद u निकालते हैं। u को कैसे निकालते हैं, ये d को 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, d को 10 से डिवाइड करते हैं, फिर f इंटू यू निकालते हैं। अब एक कॉलम बढ़ जाता है। ओके, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये करने की बजाय इट इज बेटर टू फाइंड डायरेक्टली। ओके, इसको कैसे निकालेंगे, x माइनस ए अपॉन एच, ये कॉलम डायरेक्टली निकालो। ओके, एक ही बात हो जाएगी। अभी देखो डेविएशन पहले निकाला, सो x माइनस ए, दिस x माइनस ए कितना होगा, माइनस 30 होगा, माइनस 30, ये माइनस 20 होगा, ये माइनस 10 होगा, ये 0 होगा, 10 20 और 30। ओके, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव आएगा। डिफरेंस कितना है इसके मुताबिक ही होगा। देखो ये x है 60, 60 माइनस 50 इज 10। ओके, सो दैटफॉर डिफरेंस 10 है। अब उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो u का आ जाएगा। सो 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और 3। लेकिन डायरेक्टली करने से बेटर है। यू सी इट टेक्स अप, इसमें एक और कॉलम बढ़ गया। अगर मैं डायरेक्टली इधर h लिख देता तो एक कॉलम नहीं होता। अब f इंटू यू, ध्यान रखना, f इंटू यू, 3 6 18, ओके, 11 2 22, 7 1 7, 4 0 4 1 देन 2 2 एंड फाइनली 3 1। ओके, ये सिग्मा एफ यू आ जाता, ये सिग्मा एफ यू। ऑलराइट, पहले नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दो। नेगेटिव नंबर्स को ऐड करें, 20 30 40 47, ये माइनस 47 है। ओके, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो। ओके, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो व्हाट डू यू गेट, ये 4 and 4 8 and 3 11। ओके, सो अगर इसको ऐड करते हैं तो 47 माइनस 11, 47 माइनस 11 इज 36, लेकिन नंबर माइनस बड़ा है इसलिए ये माइनस 36 आएगा। ओके, नाउ फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस सिग्मा एफ यू और एफ आई यू आई। इसको कभी कभी एफ आई यू आई भी लिखते हैं इस तरह से, लेकिन एफ आई यू आई लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन सिग्मा एफ आई भी लिखते हैं, लेकिन एफ आई लिखने एन लिखो तो भी चलेगा, इनटू एच। ओके, एंड ए की वैल्यू अब इसमें 50 है। सिग्मा एफ आई यू आई, ये सिग्मा एफ आई यू आई है, रिमेंबर ये एफ आई यू आई, इट इज द सेम, देयर इज नो नीड टू राइट आई। Sigma FI is minus 36, okay, minus 36, sigma FI is 35, and into value of H कितनी है, 10 है। okay, so 50 minus 36 into 10 is 360 upon 35, that is 50
माइनस, अभी देखो कुछ लोग इन्हें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। 360 you divide it directly by 35, okay, and you get 10.2857, okay, 10.285, 3 डेसिमल पॉइंट तक, दैट इज इक्वल टू, अब 2 डेसिमल पॉइंट तक मैं लेता हूँ, ओके, अभी देखो 2 डेसिमल पॉइंट तक लेता हूँ तो क्या हो जाता है 10.29, ओके। अब उसमें से 50 माइनस 10.29, 50 माइनस 10 वुड बी 40, सो 39.71, ओके, 39.71 इज, और ये भी देखो ये क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई, x बार की वैल्यू 39.71 आई, ओके, दिस इज 39.71। अब 39.71 देखो वो भी इधर ही है, देखो इस कॉलम में आता है 35 से लेके 45, समवेयर इन मिडल, समवेयर बीच में। अगर मान लो कि गलती से ऐसा कुछ आता है 135 आता, 135, तो ऑब्वियसली हमारी मिस्टेक है, क्योंकि 100 तो इधर है ही नहीं क्लास इंटरवल में, तो 135 कैसे आएगा। और अगर मान लो कि मुझे 6.9 आता एक्स बार की वैल्यू, तो भी मिस्टेक होता, क्योंकि हमका स्टार्टिंग कहाँ से होता है 15, तो 15 और 85, सबसे कम 15 है, सबसे ज़्यादा 85 है, देखो 15 और 85, तो हमारा एक्स बार की वैल्यू भी 15 और 85 के बीच में ही आना चाहिए, ओके, समवेयर इन द सेंटर। और देखो हमारा 39.71 आया, विच गिव्स वन एन आइडिया दैट दिस इज प्रोबेबली करेक्ट। इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ still I am not going to do the exercise today because tomorrow I am going to finish the whole exercise together, okay. I want to finish the whole exercise in one single sitting. Let me try one more, okay, one more question where you need to do this, okay. And let us take a class intervals, bigger class intervals, okay, ये class intervals। अब मैं बड़े class intervals लेता हूँ just for practice, okay, 0 to 100, okay, 100 to 200, then 200 to 300, then 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, and then 600 to 700, alright। अब मैंने बड़े बड़े क्लास लिया है, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी देखो, f की वैल्यू 12, 18, 14, 16, 10, 30, 20, ओके। अब फ्रीक्वेंसी भी मैंने बढ़ा लिया, ये टोटल, यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिखो, देखो मैं सिग्मा एफ आई लिखूँ या तो एन लिखूँ या तो सिग्मा एफ लिखूँ, इट इज़ द सेम थिंग, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, ओके। नाउ लेट अस काउंट दिस टोटल, 8 into 10, 14, 20, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 120, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, टोटल एन की वैल्यू 120, ओके। नाउ आफ्टर दैट मिड वैल्यूज x लेता हूँ। अब इसमें h की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल देखो 100 का है, सो h की वैल्यू है 100, ऑलराइट। नाउ आफ्टर दिस all I do is 0 to 100 to 50, okay, 600 to 700 will be 650, ये 650। अब 100 का इंटरवल है तो 100 ऐड कर देता हूँ, ये 150 हो गया, ये 250 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा और ये 650 हो गया, okay। Now once you go to mid values, now remember I am going to use this formula, d is equal to x minus a अपॉन h, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ओके। d इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, और d की जगह पे मैं u लिखता हूं मैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। सो मैं u का कॉलम लेता हूं, u इज एक्स माइनस ए अपॉन एच लेता हूं, ऑलराइट। अब u के बाद fu और uf, इट इज द सेम थिंग, ओके। एंड उसके इधर हमको सिग्मा यू एफ और एफ यू आ जाएगा। इट इज, डोंट वरी अबाउट द, यू सी दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ यू लिखो या यू एफ लिखो, इट डजेंट रियली मैटर, ओके, इट्स द सेम थिंग। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स ने फील कि एफ आई यू आई क्यों नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन इफ यू डोंट राइट द वर्ड एफ आई यू आई, यू जस्ट राइट एफ आई यू आई। देखो इधर मैं
FIUI लिखता हूँ तो भी कोई बात नहीं, और अगर नहीं लिखता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, आई लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नाउ इसमें से मैं कोई भी एक को चूज करता हूँ। सपोज ए की वैल्यू में अज्यूम मीन, सो इधर लिख दो assume mean A is equal to 350. Length of class interval H is equal to 100. Okay, formula लिखो, x bar is equal to A plus sigma FIUI. Remember FU लिखो तो भी चलेगा, FIUI लिखो तो भी चलेगा। Okay, sigma FI into H. या फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, यू गॉट टू नो द फॉर्मूला, वरना नहीं है। ऑलराइट, ना भी ये हमने 350 लिया तो इसके सामने तो ए की वैल्यू 0, ये यू की वैल्यू 0 जाएगी। ऑलराइट, अभी देखो क्या 150 माइनस 350 एंड डिवाइड बाई 100। ओके, देखो यू कैसा है, x माइनस ए अपॉन एच की वैल्यू 100 है। सो 50 माइनस 350 इज माइनस 300 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू -3। सो ये -3 होगा, तो ये -2 होगा, ये -1 होगा। इसी तरह से ये 1 होगा, 2 होगा और 3। सी वेरी इजी। इसलिए तो एक्चुअली ये शॉर्टकट मेथड है, ये फास्टर मेथड है, लेकिन उसको हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। हायर क्लासेस में इसी मेथड को शॉर्टकट भी बोला है। अंडरस्टूड? सो नाउ FI इंटू UI, नाउ बी केयरफुल व्हेन यू मल्टीप्लाई F इंटू U, 12 3 जा 36, ओके, 18 2 जा 36. Be careful with the minus sign. 14, 16 zeros are, 10 ones are 10. Okay, 32s are 60, and 23s are 60. Okay. Now you add up the plus numbers. इसको 140, 60 plus 60, 120, 130. ये 130 है. Now you add up the negative numbers. Okay. 36 2 are 72, 82, 86. ये minus 86 है. अब दोनों को subtract करो. 130 को मैं 86 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके, सो वो 30 प्लस 44, सो आई गेट 44। ओके, 10 माइनस 6 इज 4। ओके, 10 माइनस 6, 2 माइनस 8 12, दैट इज 4। सो 44 आता है। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 44। लेकिन साइन कौन सी आएगी? 130 वाली, क्योंकि 130 बड़ा नंबर है, उसकी साइन क्या है? प्लस, तो ये प्लस 44 है, माइनस नहीं है। नाउ पुट द वैल्यूज। ए की वैल्यू हमने 350 लिया था। ओके, सिग्मा FIUI कितना आया? 44 आया। सिग्मा FI इसका टोटल कितना है? 120, और H कितना है? 100 है। ओके, सो 350 प्लस, अब कुछ लोग है ना इसमें भी गड़बड़ करते हैं, हमेशा इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू, और उसके प्लस माइनस करो। सो 44 इंटू 100 इज 4400 अपॉन 120। जीरोस कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो। ओके, बाकी देखो किसी को अब सब कुछ ऐसे सोचेंगे कि भाई अब इसको कैलकुलेटर तो है नहीं, हम कैसे करेंगे? तो देखो जीरो को कैंसिल करो। ऑलराइट, तो मुझे कितना आया? 440 अपॉन 12। ऑलराइट, अभी 2 से कैंसिल करो। ओके, 2 से 2 6 जा 220। ओके, अब 220 डिवाइड बाई 6। ओके, अब है ना डिवीजन, अभी 220 को फिर से 2 से डिवाइड करो तो 110। ओके, 110 अपॉन 3। Now you divide 110 by upon 3 and you will get the decimal point में आता है तो कोई बात नहीं। Okay, so if I use this I get, okay, divide by and I get 36.66. Okay, so 36.67. This is, now you add it up with this, plus 350, and you get 386.67. 386.67. Alright, I hope you can see this. Okay, 386.67. Now if you look at this x bar value, इसमें देखो क्लास इंटरवल में, ओके, कहाँ पे है? देखो 300 और 400 के बीच में, 300 और 400 के बीच में हमारा आंसर आया, वो काफ़ी ठीक ही है, राइट, समवेयर इन द सेंटर। लेकिन अगर 0 के कम आया या तो फिर 700 से ज़्यादा आ गया तो फिर कुछ गलत है। Okay, the closer it comes to the center, that means your answer is quite correct. Okay, so in this case you can see 386 will lie between 300 and 400, closer to 400. Okay, so therefore you see
दिस मेथड इज नॉट ईजी. एक्चुअली दिस इज अ शॉर्टर मेथड सिंपली बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो काफ़ी छोटे नंबर आते हैं एंड छोटे नंबर आते हैं इसलिए ईजी हो जाता है. गड़बड़ कहाँ पे हो जाती है, ये प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है, फिर इधर गड़बड़ हो सकती है, अज्यूम मीन लेने में गड़बड़ हो सकती है, और फिर इधर खास करके ये ओके पहले इसको कंप्लीट करो, फिर 350 से क्या ऐड करो या तो माइनस करो, जो भी करना है. अगर माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, बट 350 को वैसे ही रहने दो, उसके बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो. ओके अगर रफ वर्क करना है तो बाजू में कर सकते हो. इसी तरह स्टैटिस्टिक्स एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ओके दोज हु रियली वर्क हार्ड कैन इजीली स्कोर मार्क्स in statistics. It should not be a problem. Alright, so these are the three methods of finding the mean. Direct method for group data as well as ungrouped data. Okay, and then step deviation method, assumed mean method. First assumed mean method, उसके बाद ये जो हमने कर रहे थे अभी वो step deviation method है. कल मैं exercise 14.1 करूँगा और एक sitting में just in one single video I'll try and complete the full exercise. Okay, meanwhile keep studying and keep studying hard. I really don't know when the school is going to reopen, but for you this is a school now, right now. Okay, keep working hard. All right, thank you.